Good morning, dear students. How are you? I hope you all fit and fine. This is your chemistry class, but before starting the work, let's take pledge against COVID-19. I, Ramandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times that is to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So now let's start with chemistry. In this video, we will continue with chapter 3rd, that is water. Next to air, water is one of the most common substance on the earth's surface. Nearly 80% of earth's surface is covered with water. In free state, it occurs in all the three states of matter, that is ice, liquid water and water vapors. In the combined state, it occurs as water of crystallization in hydrated salt. It takes part in almost all the chemical processes occurring in nature. Water found in nature is called natural water, while the water obtained after some treatment is called treated water. It is necessary for plant and animal life. Water is essential for industries. In this chapter, we will study about important physical and chemical properties of water. Now let's start with chapter water. First topic is occurrence of water. As we know, water occurs in two states, in free states and in combined state. The first state is free state. Water occurs in all the three states, in solid, liquid and gaseous. In solid, it occurs as ice, snow, frost, etc. In liquid, as river water, well water, sea water, lake water, etc. Volume of water in ocean is estimated to be in 3 into 10 raised to power 18 cubic meters. In gaseous state, it occurs as water vapors, cloud, mist, fog, etc. In combined state, it occurs in all the living matter. All living matter, that is plant and animals, contains 70% of our body weight is water. In combined state, it is present in hydrated salts such as CuSO4, .5H2O, similarly MgCl, 2.6H2O, etc. These are the hydrated salt of copper and magnesium chloride. Sea water is almost a treasure of mineral. Just 1 kilogram of sea water contains 26 grams of sodium chloride, 7 grams of magnesium sulfate, 2 grams of calcium sulfate, 1 gram of potassium chloride and minute quantities of many other chemicals. So next topic is composition of water. Ancient philosopher believed that water is an एलिमेंट. वाटर क्या है? एक एलिमेंट है. एशियन फिलोसफर का ये मानना था. नेक्स्ट, हेनरी कैवेंडिश इन 1781 proved that water can be synthesized by igniting 2 volumes of hydrogen with 1 volume of oxygen. Next, A.L. Lavoisier in 1783 proved that water is a compound of hydrogen and oxygen atom combined together in ratio of 2:1. Next, structure of water molecules, as you can see in, यहाँ पे ऑक्सीजन है, वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना रहा है. यू कैन सी हियर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और सिमिलरली ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन के एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है. Oxygen is more electronegativity than hydrogen atom. So that's why in structure there is a small negative charge on the oxygen atom, while less electronegative hydrogen atom carries a
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल का मीनिंग होता है कि स्मॉल चार्ज, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस ऑफ, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल हैं जिनके, और लोन पेयर भी बोल सकते हैं। लोन पेयर क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है वो विदाउट बॉन्डिंग पड़ा है, जिसको हम लोन पेयर बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 लोन पेयर हैं और इनकी लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से इसकी जो बैंड शेप होती है, और देयर इज अ एंगल ऑफ 104.5 डिग्री as you can see in the diagram. Next, natural and treated water. The water which occurs in nature in free state is called natural water. Examples are rain water, spring water, well water, etc. जो naturally occurring है. And treated water, the water which is obtained by treating natural water by some man-made processes is called treated water. Example है हमारे पास treated water की distilled water. Water obtained by distillation of natural water is called distilled water. Distilled water में ना तो कोई गैसेस डिसॉल्व होती है, ना ही कोई उसमें सॉल्ट होता है, ठीक है, ये क्या होती है, प्योरेस्ट फॉर्म होती है वाटर की. नेक्स्ट, पोटेबल वाटर. द वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस इज कॉल्ड पोटेबल वाटर. पोटेबल वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल वाटर जस्ट लाइक रिवर्स, फ्रॉम लेक्स, बाय ट्रीटिंग विद alum and then passing through filter beds, and it sterilized by passing chlorine or ozone gas to it. Next, water is a compound. Next topic is water is a compound. The following fact justify that water is a compound. First point is water is made up of hydrogen and oxygen combined together in fixed ratio 1/8 by mass. Next, water is produced from hydrogen and oxygen as a result of a chemical reaction. Next, the property of water are different from those of constituting elements. Hydrogen burns itself, whereas oxygen is a spotter of combustion, whereas water extinguishes fire. Next, the component of water cannot be separated by physical method, but can be separated by electrochemical method, just like electrolysis of water. इसके थ्रू हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं. Next, water has a fixed freezing point at 0 degrees Celsius and fixed boiling point at 100 degrees Celsius. Next point, when water is produced from hydrogen and oxygen, energy is given out. Energy release होती है, ठीक है, जब water produce होता है from hydrogen and oxygen. Water is a polar solvent. Polar solvent क्यों है? Because water molecules has a polarity और opposite charge and it is said to be polar. यहाँ पे क्या है, हमें डायग्राम में भी शो हो रहा है कि इस पे क्या है, पोलैरिटी आ रही है इसके एटम पे, सो दैट्स वाई इट इज अ polar solvent. Next, universal solvent. Factors which makes water universal solvents are: first one, water molecule is polar in nature. Next, water molecules form hydrogen bond with molecules of other compounds. Water molecules have high dielectric constant, and water molecules can enter in a chemical reaction with other compounds. Next, water possesses the ability to dissolve almost something of everything. Means ये almost हर चीज़ से कोई ना कोई चीज़ को dissolve कर लेता है. Hence it is known as a universal solvent, as you can show in figure. यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, ये इसने सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पोलर सॉल्वेंट है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज. दिस एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी. क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रेशन एनर्जी. ड्यू टू दिस released energy, overall energy of system decrease. As a result, the substance get highly stabilized. उसकी एनर्जी जब डिक्रीज होगी तो जो सब्सटेंस है वो स्टेबल होगा. क्यों होगा? जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होगी, और जितनी कम एनर्जी है उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. नेक्स्ट, वाटर साइकिल इन नेचर. वाटर साइकिल का तो आपको पता ही क्या होता है. सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस टू एटमॉस्फेयर एंड बैक टू अर्थ is called water cycle in nature. As
यू कैन सी इन फिगर, आप फिगर में देख सकते हो वाटर साइकिल क्या होता है। पहले सी वाटर से एवेपोरेशन होके ये वाटर कंडेंस होके क्लाउड फॉर्मेशन करता है, फिर उसके बाद जब बारिश होती है तो ये रेन वाटर और स्नो के जरिए फिर से ये अर्थ पे आ जाता है। इम्पॉर्टेंस क्या है वाटर की? वाटर इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट एनिमल्स, फॉर लिविंग बींग्स, गो एंड कुक फूड, ड्रिंकिंग, इंडस्ट्रियल पर्पज, फॉर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, फॉर जनरेट स्ट्रीम, ठीक है, बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स टू अदर कंट्रीज, और वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन nuclear reactors. It is also used in manufacture of chemical just like hydrogen, oxygen, ammonia, nitric acid. It is used in laboratory. It is used as a universal solvent. क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट ये हर चीज़ को डिसॉल्व कर लेता है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है वाटर की? फर्स्ट कलर, वी नो दैट प्योर वाटर इज कलरलेस, ट्रांसपेरेंट होता है ये। ऑर्डर कैसी होती है? ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट कैसा होता है? टेस्टलेस होता है और हैज़ अ फ्लैट टेस्ट। बॉइलिंग पॉइंट कितना है? प्योर वाटर बॉयल होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट अफेक्टेड होता है बाय प्रेशर एंड इम्प्योरिटीज से। इंक्रीज इन प्रेशर इज दी बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। इस फैक्ट को हम प्रेशर कुकर में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन प्रेशर लोअर बॉइलिंग पॉइंट, जितना प्रेशर को डिक्रीज करोगे बॉइलिंग पॉइंट भी उतना डिक्रीज होगा, ठीक है। एट हिल्स वाटर बॉइल्स बिलो 100 डिग्री सेल्सियस एंड देयरफॉर कुकिंग इज डिफिकल्ट एट हिल्स, सो दैट्स वाई वहाँ पे हम प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर राइसेस द बॉइलिंग पॉइंट, जितने ज़्यादा उसमें डिजॉल्व सॉल्ट होंगे उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। Kerals some soften more readily when boiled in water containing salt. Next, freezing point. फ्रीजिंग पॉइंट तो पता है कि जो प्योर वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देयर आर सम फैक्टर इफेक्टेड वेयर फ्रीजिंग पॉइंट अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड इम्प्योरिटीज। इंक्रीज इन प्रेशर लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज यूज्ड इन आइस स्केटिंग। Presence of soluble salt in water lower the freezing point. Just like to melt snow on road, sodium chloride is sprayed on the road of hilly areas. ठीक है, हिली एरियाज में स्नो को रिड्यूस करने के लिए, रोड से हटाने के लिए वहाँ पे क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड को स्प्रे करते हैं। जितने ज़्यादा सॉल्युबल सॉल्ट होंगे वाटर में उतना उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। नेक्स्ट फैक्टर इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज डेंसिटी। Water has a maximum density of 1 gram cc at 4 degree Celsius cubic centimeter. Ice has lower density than water and flows over it. Ice की जो density है वो कम होती है as compared to water, इसीलिए वो water पे float करती है। Next, physical properties, specific heat capacity. Specific heat capacity of water is 5.2 joule per gram or 1 calories per gram at 15 degrees Celsius. It is higher among all substances. Specific latent heat of fusion of ice is 2268 joule per gram or 540 gram. Next, specific latent heat of vaporization is 336 joule per gram or 80 cal per gram. Next, conductivity. प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर है वो क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर हैज अ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एट 80। नेक्स्ट टॉपिक इज एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या है? लेट्स सी। क्या वाटर इज द ओनली सब्सटेंस विच एक्सपेंड्स ऑन कूलिंग एट टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। एक वाटर ही ऐसा सब्सटेंस है जो एक्सपैंड होता है ऑन कूलिंग जब उसका टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। दिस एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर प्रोटेक्ट लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग अंडर वाटर। एज वी कैन सी एक्सप्लेनेशन, व्हेन वाटर एट द बॉटम ऑफ पॉन्ड एंड लेक फ्रीजेस इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस और बिलो इट, the ice being lighter then water rises and float on the top. Water form the lower layer in which the fishes and other animals can survive. Thus the upper layer of ice act as an insulator and protect the fish and animals from
फर्दर कूल, जब उसकी डेंसिटी जब क्या होगा, अपर जो लेयर है, ठीक है, जो वाटर की अपर लेयर है वो तो क्या होगी, टेम्परेचर की वजह से वो तो क्या हो जाएगी, ठीक है, कूल हो जाएगी और फ्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो उसके नीचे वाटर है वो क्या होता है, लोअर लेयर है, उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से, क्योंकि ऊपर जो क्या है एक फ्रीजिंग लेयर बनी हुई है, जिसकी वजह से जो अदर एनिमल्स हैं या फिशेज हैं जो लोअर लेवल ऑफ, ठीक है, पॉन्ड में होंगे, उस पर जो फर्दर कोल्ड का असर है वो नहीं पड़ता है। सो दैट्स वाई जो इसका जो एनामलस बिहेवियर है वाटर का, ठीक है, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग अंडर वाटर। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, कि वाटर है वो तीनों स्टेट में अकर करता है, आइस, वाटर एंड गैसेस में। आइस को जब हम मेल्ट करेंगे तो ये वाटर में चला जाएगा, वाटर को फर्दर बॉयल करेंगे तो ये गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगर हम गैसेस फॉर्म को कंडेंस करेंगे तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और जब लिक्विड को फ्रीज करेंगे तो ये फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दीज आर इंटर कन्वर्टिबल स्टेट्स। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट टू शो द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर। हमें ये दिखाना है कि जो वाटर है उसमें डिसॉल्व सॉल्ट होते हैं ऑलरेडी। कैसे करेंगे, हमने एक बीकर में वाटर लेंगे, ठीक है, उसके ऊपर हमने एक पुट सम टैप वाटर ऑन अ क्लीन वाटर ग्लास, यहाँ पे आप देख सकते हो, प्लेस इट ऑन अ बीकर कंटेनिंग वाटर, हमने इसको जो बीकर है, ठीक है, जिसमें वाटर है उसके ऊपर रख दिया। नाउ हीट द बीकर सो दैट वाटर बॉइल्स। आप क्या देखोगे, जब वाटर बॉइल्स करेगा, ठीक है, when all the water from the watch glass has evaporated, सारा तो जो वाटर है evaporate हो जाएगा। जब इसको रिमूव करोगे, कूल करोगे, on cooling there is a some concentric rings of solid matter as you can see, यहाँ पे ऐसे रिंग्स दिखाई देंगे which shows that water contains dissolved salt, जो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट होंगे उसके डिफरेंट डिफरेंट ऐसे concentric सर्कल बन जाएंगे। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, द फर्स्ट, वाटर एक्वायर्ड taste due to dissolved salt. Dissolved salt act as a micronutrients for plants and help in their growth. Next, experiment to show the presence of dissolved gases in water. हमने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करना है, ये बताना है कि जो वाटर है उसमें गैसेस भी डिसॉल्व होती हैं। ऑर्डिनरी वाटर कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस डिसॉल्व इन इट, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, फिल अराउंड बॉटम फ्लास्क कंप्लीटली विद टैप वाटर, आप देख सकते हो यहाँ पे टैप वाटर के साथ इसको फिल किया। नाउ पुट अ फ्यू पैक्ड क्लीन पीसेस इन टू इट, इंसर्ट अ रबर कॉर्क प्रोवाइडेड विद 2 होल्स, आप देख सकते हो कि जिसके ऊपर 2 होल्स लगे हों उसको कॉर्क को हमने फ्लास्क की नेक पे रखना है। नाउ इन 1 होल, एक होल में आप क्या करोगे, पास अ शॉर्ट ग्लास ट्यूब विच कैन बी क्लोज्ड विद द रबर ट्यूब, एक रबर ट्यूब के साथ जो क्लोज हो जाएगी, एंड अ क्लिप अरेंजमेंट। थ्रू द अनदर होल पास अ डिलीवरी ट्यूब टू द अदर एंड ऑफ विच इज पास्ड इन वाटर ओवर विच एन इन्वर्टेड ग्रेजुएट ब्यूरेट इज प्लेस्ड। आप देख सकते हो इस पे कॉर्क के 2 एंड होंगे, एक में तो हमने ब्यूरेट रखी है जिसको हम ये रबर ट्यूब और क्लिप अरेंजमेंट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका जो सेकंड होल है उसमें से हमने एक डिलीवरी ट्यूब रखनी है जो किस में जा रही है, जहाँ पे हमारी इन्वर्टेड ब्यूरेट प्लेस्ड है, एज यू कैन सी हियर। जब आप फ्लास्क को हीट करोगे तो आप बबल्स देखोगे इन ब्यूरेट, बबल देखोगे, जो बबल्स है वो क्या शो कर रहे हैं, जब आप इसको हीट करोगे तो यहाँ पे हमारी दूसरी साइड जो ब्यूरेट में बबल्स दिखाई देंगे। बबल्स क्यों दिखाई दे रहे हैं, इट शोज दैट देयर इज सम डिसॉल्व्ड गैसेस इन वाटर। So by this experiment we can show the presence of dissolved gases in water. Next, importance of dissolved gases in water. Importance क्या है, जब dissolved ऑक्सीजन होगी, ठीक है, वाटर में होती है तो उसको जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उसको रेस्पिरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इट ऑल्सो किल्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया। Next, dissolved carbon dioxide is used for photosynthesis of aquatic plants, formation of cells, etc. This is all about water. There is worksheet 1
which is related to this topic. Try to do this by yourself. If you have any doubt regarding this, then we will discuss in your online class. Thanks students. Have a nice day.